Good morning, dear students. This is Vijay Lakshmi here, your accountancy teacher. Today we will start with +2 syllabus, and this is your related to your book Analysis of Financial Statements Part B, right? And we will start with the first chapter, that is Financial Statements of a Company. Now, first of all, we must know the meaning of financial statements. Financial statements are the end products of accounting process. They provide information about the profitability and financial position of the business. According to Section 2, subsection 40 of Indian Companies Act 2013, financial statement of a company include balance sheet at the end of the financial year, as at, right? Balance sheet as at. Statement of profit and loss for the financial year, cash flow statement for the financial year, statement of changes in equity and explanatory notes. But one-person company, small company and dormant company, these are exempted from preparing cash flow statement with their financial statements, right? As per Section 2, subsection 41 of Companies Act 2013, all companies are required to have a uniform financial year, which shall be period from 1st April to 31st March every year. Only companies which are holding or subsidiaries of foreign company required to follow different financial year for the purpose of consideration of its accounts outside India, right? Now, when we prepare financial statements, now here we will do under financial statements, balance sheet and statement of profit and loss, right? And earlier in +1 syllabus, we also made all these two things, but those were related to sole trade or partnership. But this type of format that we'll discuss now is followed by the companies, right? Company needs to follow that particular format. Now we must know the objectives of preparing these financial statements. First is to present a true and fair view of financial performance, means profit or loss of the business. And second objective is to present a true and fair view of financial position, means assets, equity and liabilities of the business. Main features of financial statements are related to past period and hence are historical documents. Second is they are expressed in monetary terms. Then third is financial statements show profitability through statement of profit and loss and financial position through balance sheet. Main features of balance sheet are it portrays the relationship between equity and liabilities and assets. Total of equity and liabilities side is always equal to the asset side. It is prepared on a particular date and not for a period. It is true only for that particular date on which it is prepared, because every single transaction would cause a change in assets and liabilities. Next feature is it shows financial position of the business according to the going concern concept. Next is it is not based on absolute facts but is influenced by accounting assumptions and personal judgments. Main features of statement of profit and loss are it matches revenue and expenses of an enterprise for a particular period. In order to determine the profit earned or loss suffered during the period, it is prepared for a particular period, not on a particular date. Balance sheet on particular date, but profit and loss statement for a particular period. It is prepared for past period, so it is historical document, right beta? Now financial statements की main nature क्या है? First is recorded facts. The term recorded facts means that the data used for preparing financial statements are drawn from accounting records. For example, figures relating to cash in hand, cash at bank, trade receivables, etc. The assets purchased at different times at different prices are shown in balance sheet at their actual cost. And they are not shown in balance sheet at their realizable value or replacement cost. Next is accounting conventions. Accounting conventions imply certain fundamental accounting principles which have gained wide acceptance and which are followed while preparing financial statements. Next one is personal judgments. Even though certain accounting
Conventions are followed while preparing the financial statements. Still, personal judgment of the accountant plays a decisive role in accounting. For example, the accountant has to decide whether the asset is to be depreciated on straight line method, written down value method, or some other method. So personal judgments are also taken care of. Now beta, next one is schedule for preparing balance sheet and statement of. Now first of all we will prepare format of balance sheet, right? Here in printed form also given, and even after that I have written in handwritten form also. You can see from there also format of balance sheet, and this format as it is you have to copy down in your registers and you have to learn it as it is, because in your examination you will get definitely 5 marks question. 2 formats we will discuss here now, format of balance sheet and format of statement of profit and loss. Definitely you are going to get one question of 5 marks in your exam. As it is you need to learn it, right? Now format of balance sheet is prepared according to schedule 3 part 1 of Companies Act. Balance sheet is prepared according to schedule 3 part 1 of Companies Act, right? Now first of all in left side we write here name of the company, balance sheet as at, and in right side rupees in, lakhs, crores, million, whatever. After that particulars. Second is note number, means if any additional information, adjustments or additional information is to be given about any item, here note number is written and afterwards its explanatory notes are given. Then after that figures as at the end of current reporting period, and fourth column is figures as at the end of previous reporting period. Now beta, this balance sheet is prepared in vertical form, right? It is prepared in vertical form. आपकी पहले बैलेंस शीट होती थी हॉरिजेंटल फॉर्म में, अब वर्टिकल फॉर्म में है, राइट? वर्टिकल फॉर्म में एक पार्ट होता है सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, एंड सेकंड पार्ट होता है एसेट्स का. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ दीज आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एंड second one assets are divided into 2 parts. Now first of all equity and liabilities. Under equity and liabilities first head is shareholders funds. Under shareholders funds again there are 3 sub heads, right? 3 types of shareholders funds. Under shareholders funds first one is share capital. Now beta यहाँ पे हम जो share capital लिखते हैं only subscribed share capital is to be written. Now नोट्स टू अकाउंट्स में, बट यहाँ पे हमेशा हमारा जो होता है इन्फॉर्मेशन होती है शेयर कैपिटल हमारी 3 तरह की होती है. ऑथराइज्ड कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड होती है, मींस मैक्सिमम कैपिटल विच इज़ ऑथराइज्ड टू इशू इन द कंपनीज लाइफ टाइम, राइट? वी डोंट ऐड इट इन बैलेंस शीट. सेकेंड टाइप की होती है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल होती है दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज़ ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. It can be lesser than and equal to authorized capital but not more than authorized capital. The remaining part of the authorized capital, if there is any, which is not issued, is called unissued capital. Issued capital is also not shown in balance sheet. उसके बाद next आती है subscribed capital. ये सारे notes to accounts हम बनाते हैं, आपको मैं orally बता रही हूँ, but in +2 you have to do these notes to accounts also, right? Subscribed capital is that part of issued capital which is subscribed by the public. It can be equal to or less than issued capital, and this subscribed capital is shown in balance sheet. इसमें हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड मीन्स अगर शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा दे दिया, और सेकंड आती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, या कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया नहीं या अभी शेयर होल्डर्स ने दिया नहीं, वो सब कुछ दैट इज शोन इन अंडर शेयर कैपिटल. शेयर होल्डर्स फंड्स में सेकंड सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा इसमें हमारे आता है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. रिजर्व यू नो विच इज़ दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ केप्ट असाइड फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, राइट. रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पॉजिटिव में, और एंड इफ देयर इज लॉस इट इज शोन इन नेगेटिव फॉर्म हेयर, राइट, इन दिस हेड ओनली. नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. इफ शेयर वारंट्स आर इशूड, उनके अगेंस्ट कोई मनी मिली हुई है, दैट इज ऑल्सो शोन हेयर. सेकेंड मेन हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. जब भी बेटा शेयर्स इशू होते हैं बेटा
सबसे पहले लोगों को इनवाइट किया जाता है तो एप्लीकेशन मनी आती है, उसके बाद उनकी अलॉटमेंट होती है। जिस डेट को बैलेंस शीट बन रही है ओनली एप्लीकेशन मनी बीइंग रिसीव्ड बट स्टिल अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, तो उस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में नहीं लिखते, अलग हेड में डाल देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट मनी अभी आई ही नहीं है। थर्ड हेड आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ विच आर not current liabilities and arise after 12 months of balance sheet date, right? मेन आती है इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पहला हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका हम कोई वैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है +2 में, बट बैलेंस शीट में एज इट इज़ इसको हेड को शो करते हैं। When there is difference between taxable income and accounting income, taxable income कौन सी होती है? जो टैक्स अथॉरिटीज़ ने डिसाइड की, और अकाउंटिंग इनकम जो कंपनी ने बनाई, उसके बेसिस पे जब टैक्स दिया जाता है। जब अकाउंटिंग इनकम इज़ लेस देन टैक्सेबल इनकम, मीन्स अथॉरिटीज़ के हिसाब से ज़्यादा टैक्स बन रहा है, हमने कंपनी ने कम टैक्स पे किया है, तो डिफरेंस विल बी लाइबिलिटी फॉर द कंपनी टू पे टू द टैक्स अथॉरिटीज़, राइट। और इसको हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसका भी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते हम। इसमें आता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, वारंटी क्लेम्स, प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा, ये वाले सारे प्रोविजंस इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी मीन्स अ लाइबिलिटी विच शेल बी क्लासिफाइड if it is to be settled within 12 months or normal operating cycle। सबसे पहला इसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में है बेटा टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स होती है कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स एंड डिपॉजिट्स। ट्रेड पेबल्स है नेक्स्ट, इसमें बिल्स पेबल्स एंड क्रेडिटर्स। अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, अनपेड डिविडेंड्स, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, GST पेबल, प्रोविडेंट फंड पेबल, ये सब यहाँ पे आते हैं अदर लॉन्ग टर्म एंड नेक्स्ट है अदर करंट लाइबिलिटीज़ में। और लास्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एनी प्रोविजन विच इज़ टू बी मेट इन विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है। ये सारी हमारी देखो बेटा लाइबिलिटी साइड है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड्स, इसके 3 हेड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सेकंड, थर्ड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़, उसके 4 हेड्स, करंट लाइबिलिटीज़ के 4 हेड्स। इसके बाद टोटल कर देंगे इसका, ऑल लाइबिलिटीज़ का, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल। उसके बाद हम लिखते हैं एसेट्स। एसेट्स में हमारी आती हैं अगेन, एसेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले आती हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में हमारा सबसे पहले है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का आपको पता है बेटा, which can be seen and touched, for example land and building, plant, equipments, furniture, computer, vehicles, office equipments, ये सब tangible हैं। दूसरी है intangible। tangible आती है, tangible के बाद सेकंड है intangible। intangible में assets which do not have physical existence, goodwill, copyright, patents, brand, trademark, license, must heads, publishing titles, computer software, ये सब intangible assets में आती हैं, ठीक है। उसके बाद है माइनिंग राइट्स भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। थर्ड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? जो हमारी टेंजिबल एसेट्स का काम अभी चल रहा है। फिक्स टेंजिबल एसेट्स विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है उनकी। एंड नेक्स्ट है इसमें इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इट मीन्स इनकी जो डेवलपमेंट अभी चल रही है इनटेंजिबल एसेट्स की, कोई पेटेंट्स हैं, मतलब प्रोसेस में चल रहा है काम, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। पेटेंट्स, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ काम। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स में सेकंड हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनी समवेयर आउटसाइड फॉर मोर देन 1 ईयर। किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स ले लिए, किसी और कंपनी के डिबेंचर्स ले लिए, कहीं किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में वो कर दिया इन्वेस्ट, कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, राइट। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स वही बेटा डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम है 7 लाख, टैक्सेबल इनकम बन गई 8 लाख, मीन्स आपने पे ज़्यादा किए, टैक्सेबल अथॉरिटीज़ के हिसाब से कम बन रहा है, तो वो आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगी।
उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें हमारे आते हैं कैपिटल एडवांसेस कि किसी को हमने फिक्स एसेट्स एक्वायर करने के लिए एडवांसेस गिवन है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी को, टेलीफोन डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी डिपॉजिट्स दी हुई हैं, राइट। और आता है उसमें अदर, उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गया। देन उसके बाद आती है हमारी करंट इन्वेस्ट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा आता है एन एसेट शेल बी क्लासिफाइड एज करंट if it is expected to be realized between 12 months after the balance sheet date। इसमें सबसे पहले हमारा आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स में है बेटा वो इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, जिनको हम अगले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन्वेंट्री स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री, ये सब। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम जाते हैं बेटा बीआर एंड डेटर्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट एटसेट्रा। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें आता है हमारा लोन्स एंड एडवांसेस विच आर रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। शॉर्ट टर्म लोन्स है। देन लास्ट है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न ऑफ विद इन 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट। तो ये हमने सारे करने हैं बेटा इसमें। एक इसमें बेटा इस जो हैंड रिटन फॉर्मेट है इसमें नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में हमारा ई पार्ट नहीं लिखा हुआ, अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं लिखा हुआ, ई पार्ट। प्रिंटेड वाले से आप इसको कॉपी डाउन करेंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू नोट डाउन दिस फॉर्मेट इन योर नोटबुक। जो थ्योरी पार्ट है, इनिशियल जो ये वाले पेजेस हैं, यू आर गोइंग टू रीड फर्स्ट 2 पेजेस, राइट। इनको रीड करेंगे अच्छे से, देन ये फॉर्मेट करेंगे आप अच्छे से, राइट। इस फॉर्मेट को करने के बाद इसमें बस प्रिंटेड में से आप वहाँ पे एक वो ज़रूर साथ में मेंशन कर लेंगे बेटा, लिखेंगे इसका जो हमारा ई पार्ट रह गया है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का, राइट। यहाँ पे ज़रूर साथ में लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। ये वाला आप पूरा कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द अनदर फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस इन योर एग्जामिनेशन पर्पज़।